ایران کے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے، جنوبی تل ابیب میں دھماکے، گلیلی اور گولان کے پہاڑوں میں اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں میں 4 افراد ہلاک، 35 زخمی۔ اسرائیل ساری حدیں پار کر چکا، کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ صہیونی ریاست پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ خطے میں اسرائیل کے حامی ممالک کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کا دوسرا روز، اصفہان میں کئی مقامات پر دھماکے، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، کئی جنگی طیارے تباہ، اسرائیل کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے، ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، فلسطینی بچوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، تہران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ بحران کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں میں اعلیٰ فوجی کمانڈروں سمیت 78 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور بیشتر عام شہری شامل۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قرارداد کی حمایت پر پاکستان، چین، روس اور الجیریا سے اظہار تشکر۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر بلایا گیا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ عالمی ادارہ متفقہ لاہے عمل اختیار کرنے میں ناکام۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اسرائیل کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکی مندوب۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا کوئی جواز نہیں، اسرائیل کو ان حملوں کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اشتعال انگیزی کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ چینی اور روسی ایلچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ علاقائی صورتحال پر غور۔ امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بحران کے حل کی کوششوں کے لیے تیار ہے: صدر ٹرمپ۔ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ بری طرح بے نقاب۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے رابطہ۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی اور نیتن یاہو کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ بین الاقوامی برادری کی ایران پر حملے کی مذمت۔ چین، روس، ترکی، سعودی عرب، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، نیوزی لینڈ کا اظہار تشویش۔ عالمی برادری نے حملے کو خطے کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ نئی دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل۔ امریکہ کی خطے کے کئی ملکوں میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف سلامتی کونسل میں پاکستان کا سخت موقف، بلا اشتعال، بلا جواز اور ناجائز حملے کی شدید مذمت۔ برادر اسلامی ملک کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ حملہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، مشکل وقت میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں: محمد نواز شریف۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے مسلسل 17واں بجٹ پیش کیا، زرعی شعبے اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کی بہتری کے لیے کام کیا۔
कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। माली साल के इख्तिताम पर रिकॉर्ड तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद से मुतालिक इजलास। गजा और मगरबी किनारे में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार का फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत का इआदा। फ़लस्तीनी अवाम तक इमदादी सामान की तरसील बढ़ाने और तलबा के लिए तालीमी सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। खून का अतिया, इंसानियत के लिए हमदर्दी का अक्कास। रज़ाकाराना तौर पर लोगों की मदद करने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। ये दिन न सिर्फ दुनिया भर के रज़ाकारों से इजहार तशक्कुर बल्कि खून के अतियात को जारी रखने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर देता है। हुकूमत नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम के जरिए खून के एहतियात से मुतालिक आगाही मुहिम चला रही है। हम सब मिलकर महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खून अतिया करने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। खून अतिया करने का आलमी दिन वजारत सेहत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से पिंस अस्पताल में तकरीब का इनकाद। 150 रज़ाकारों ने खून का अतिया दिया। पाकिस्तान में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर डिपिंग लियो खून का अतिया देने वाले पहले रज़ाकारों में शामिल। रज़ाकाराना खून का अतिया खून का सबसे महफूज और पायदार जरिया है, डॉक्टर लियो। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 69 रन दरकार, 8 विकेटें बाकी। तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में 207 रन पर आउट। जनूबी अफ्रीका को 282 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों पर 213 रन बना लिए। ओपनर एडन मर्करम 102 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 212 और जनूबी अफ्रीका ने 138 रन बनाए। मैच BTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। लंदन में WTA 500 क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। चीन के किन वेनजिंग और अमेरिका की अमिंदा एनिसमोवा सेमीफाइनल में पहुंच गईं। अमेरिका की मेडिसन कीज और जर्मनी की तातियाना मारिया ने भी लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। तातियाना मारिया ने काज़ाकिस्तान की एलिना रैबैकना को अपसेट शिकस्त दी। नीदरलैंड्स में ATP 250 हर्टोगन-बोश टेनिस टूर्नामेंट। टॉप सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव को क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त। अमेरिका के लकी लूजर रॉयली उकल्का सेमीफाइनल में पहुंच गए। फ्रांस के ओगो हेम्बर्ट, कनाडा के गैब्रियल डियालो भी लास्ट 4 में शामिल। और जर्मनी में ATP 250 स्टटगार्ट ओपन। टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के बेन शर्टिन और टेलर फिट्ज की भी लास्ट 4 में रसाई। कनाडा के फेलिक्स अलियासीम ने जर्मनी के जस्टिन एंगल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईरान ने सिहूनी जारियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी अन्ना के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 3 के नाम से इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है।
ایران کا اسرائیل کے 2 F-35 طیارے اور وزارت دفاع کی عمارت سمیت فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملے میں 20 اسرائیلی شہری زخمی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن کی آوازیں سنی گئی ہیں اور دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل میڈیا کی جانب سے متعدد شہریوں کے زخمی ہونے اور تل ابیب میں متعدد مقامات پر تباہی کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ صہیونی ریاست کو ایسا سخت جواب دیا جائے گا کہ اسے دوبارہ کبھی ایران پر حملے کی جرت نہیں ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو ایران پر وحشیانہ جارحیت کے بعد اب سخت جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قوم کے نام ٹی وی پر نشر کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اسرائیل کو ایران پر حملوں اور متعدد فوجی کمانڈرز اور 6 جوہری سائنسدانوں کی شہادت پر سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے اپنے لیے ایک تلخ اور تکلیف دہ تقدیر پر مہر ثبت کر دی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ شہید ہونے والے کمانڈرز کی جگہ فوری طور پر تعیناتیاں کر دی گئی ہیں جو اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اراوانی نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں میں اعلیٰ فوجی کمانڈر سمیت 78 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور بیشتر عام شہری شامل ہیں۔ ایرانی سفیر نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قرارداد کی حمایت پر پاکستان، چین، روس اور الجیریا سے اظہار تشکر کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر بلایا گیا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بغیر کسی واضح نتیجے کے ختم ہو گیا۔ عالمی ادارہ متفقہ لاہ عمل اختیار کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں سامنے آ گیا۔ امریکی مندوب نے اعتراف کیا کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے سے قبل آگاہ تھا، تاہم انہوں نے حملوں میں امریکی فورسز شامل ہونے کی تردید کی اور واضح کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اسرائیل کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کشیدگی میں کمی کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں چینی مستقل مندوب فوکانگ نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے ایران کی سلامتی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو بھی ان حملوں کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ روس کے ایلچی نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ اشتعال انگیزی کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے فریقین پر ضبط و تحمل، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی اور علاقائی صورتحال پر غور کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بحران کے حل کی کوششوں میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایران پر اسرائیل کے حملے اور قیمتی جانی نقصان کی مذمت کی ہے۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ صدر پوتن نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ روس اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرتا ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے تنازع کو پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر پوتن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے مذاکراتی عمل کی بحالی پر زور دیا اور کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام معاملات کو سیاسی اور سفارتی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ اور وینزویلا کے صدر نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاگل پن بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات براہ راست نشریاتی پروگرام کے دوران کہی۔ صدر مادورو نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں جرمنی، فرانس اور امریکہ کی ایران پر تازہ حملے اور اس سے قبل لبنان، شام اور یمن پر اسرائیلی حملوں پر خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है और फ़लस्तीनी बच्चों पर मज़ालिम ढा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने ईरान की जौहरी और फौजी तनसीबात पर इसराइल के बिलाजवाज़ और गैर कानूनी हमले को खित्ते के अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। आसिम इफ्तिखार ने बहरान को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल को इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। 15 रुकनी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। पाकिस्तान, चीन, रूस और अल्जीरिया ने इसकी हिमायत की थी। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने बिला इश्तिआल, बिला जवाज़ और नाजायज़ हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और पाकिस्तान ब्रदर ने इस्लामी मुल्क के अवाम से इजहार यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला इसराइल की बड़ी गलती है। इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया उस हवाले से कुछ बताओ। बहुत अफसोसनाक है जी, बहुत ही मेरे आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल इससे बड़ी गलती और हो नहीं सकती इसराइल कि किस तरह से हमला कर दिया। बहुत ज़्यादती। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इस घिनौने इक़दाम ने इंसानियत और आलमी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। तर्जुमान का कहना है कि इन इक़दाम से इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। आलमी बरादरी ने ईरान पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कशीदगी को फौरी न रोका गया तो इसके खित्ते पर संगीन असरात होंगे। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया है। सऊदी वजारत ख़ारजा ने हमलों को खुली जारहियत करार देते हुए कहा कि हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ और बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि हमलों को अच्छा नहीं कहा जा सकता, इससे मशरिक़ वस्ता के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमलों से खित्ते में मज़ीद तबाही पैदा होगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तमाम फ़रीक कशीदगी के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करें। Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications.
Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Madam President, these attacks follow a dangerous pattern of Israeli irresponsible conduct marked by ongoing military operations in Gaza and repeated cross-border strikes in Syria, Lebanon, and Yemen, demonstrating a consistent and deliberate disregard for international norms. Israel's actions in the Middle East reflect a continuing pattern of unilateral militarism in flagrant violation of Article 2(4) of the UN Charter and represent acts of aggression as defined under General Assembly Resolution 3314 of 1974. Israel's serial breaches of sovereignty normalize impunity, erode the authority of the United Nations, and gravely undermine the international order. Such blatant aggression and contempt for international law has already had devastating consequences. In Gaza, tens of thousands of civilians have been killed as a result of Israeli military onslaught, and a humanitarian catastrophe has unfolded under an illegal blockade that has in fact been there for over 15 years. In Syria, Yemen, and Lebanon, Israeli airstrikes have repeatedly targeted sovereign territory, undermining regional stability and exacerbating tensions. The fact that these attacks against Iran have happened in the middle of a negotiations process aimed at finding a peaceful diplomatic solution to the Iranian nuclear issue makes it all the more morally repugnant and against international norms. These actions risk eroding the trust and sanctity of the negotiations process, so crucial for the peaceful settlement of these issues. Madam President, Pakistan reaffirms its support for the resolution of the Iranian nuclear issue through peaceful means, diplomatic engagement, and sustained dialogue. The JCPOA was an outcome of painstaking and arduous yet constructive negotiations. It charted a roadmap to comprehensively address the concerns of the parties involved by clearly defining their relevant obligations and responsibilities. The illegal use of force against Iran and the ensuing situation are likely to frustrate the ongoing diplomatic efforts and could destabilize a region that is already under very severe stress. The ongoing diplomatic context to reach a negotiated deal and other endeavors to promote regional peace and security must not be allowed to be appended. It is highly regrettable that these attacks have happened when the IAEA was continuing its verification activities in Iran. Such actions threaten the IAEA's technical work, which should be supported and not disrupted. Israel has violated international law, IAEA statute, and several IAEA resolutions by attacking the IAEA safeguarded facilities. In addition to serious violation of international law, these attacks risk setting a dangerous negative precedent and pose a grave threat to safety of populations in the region and around the globe. Pakistan, as an immediate neighbor of Iran, is therefore seriously concerned. Security Council Resolution 487 strongly affirmed such attacks as a clear violation of the UN Charter, the norms of international conduct, and a serious threat to the entire IAEA safeguard regime. We call on all parties, Madam President, to fulfill their respective obligations and responsibilities and avoid escalation. Even in these testing times, diplomatic engagement and dialogue must be prioritized. Clearly, the international community is in favor of peace and stability in the region. In a few days, next week, the international community, the UN membership, was to come together to express its will to chart the path for the Palestinian state as part of the two-state solution that would usher in the long-awaited, just, and durable peace in the Middle East. Israel's reckless and irresponsible behavior cannot be allowed
to jeopardize the efforts for peace, endanger the stability of the entire region, and risk wider escalation, thereby threatening global peace and security. The Security Council bears primary responsibility to maintain international peace and security and to stop this aggression immediately. It must hold the aggressor accountable for its actions. This Council must deny Israel the free hand and the impunity with which it continues to operate in defiance of international law and international opinion. It is also our collective responsibility to reject any notions by anyone, anywhere, that seek to distort, misuse, and abuse the right of self-defense in violation of international law and the UN Charter. Finally, this Council must collectively muster the courage to take positions and adopt decisions that are in full conformity with the Charter of the United Nations. In accordance with its responsibility, the Council should encourage, support, and prioritize dialogue and diplomacy to advance peaceful resolution of conflicts. That is the only viable path forward, as many around the table have also echoed in their comments. I thank you, Madam President. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद सलामती काउंसिल से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले को खित्ते की सलामती और अमन के लिए खतरा करार दिया। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि UN चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जाना चाहिए। इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारियत खित्ते के अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मंदूब का बहरान को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। इसराइल गजा में निहत्ते शहरियों को शहीद कर रहा है, ये कहना है आसिम इफ्तिखार अहमद का। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। इसहाक डार ने इसराइली हमलों के नतीजे में कीमती जानों के नुकसान पर हमदर्दी का भी इजहार किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की तरफ से जारी इमदाद की तरसील का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने गज़ा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फ़लस्तीन काउज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत का इआदा किया। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान की तरसील बढ़ाने और फ़लस्तीनी तलबा के लिए तालीमी सहूलियात फराहम करने पर भी जोर दिया। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून अतिया करने वालों का दिन मनाया जा रहा है ताकि महफूज और रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों की तादाद में इजाफा किया जा सके और उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाए जो बाकायदगी से खून का अतिया करते हैं। इस साल का थीम खून दें, उम्मीद दें, मिलकर हम जिंदगियां बचाएं, जो मरीजों में जिंदगी की उम्मीद जगाने के लिए बाकायदगी से खून के एहतियात की जरूरत पर जोर देता है। खून अतिया करने के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खून का अतिया इंसानियत के लिए हमदर्दी का अक्कास और किसी भी मुल्क के निज़ाम सेहत की देखभाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन रज़ाकाराना तौर पर लोगों की मदद करने वाले अफराद को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है, जो लाखों इंसानों को जीने का दूसरा मौका देने के अजीम मकसद के लिए बेलौस खून का अतिया देते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम के ज़रिए खून के एहतियात से मुतालिक आगाही मुहिम चला रही है। ताहम इस बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सेहतमंद और मुखय्यर अफराद बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो शहरी फ़र्ज़ समझते हुए खून का अतिया देकर इंसानियत की खिदमत करें। उन्होंने खून अतिया करने वाले निजी इदारों की भी तारीफ़ की।
ब्लड डोनर के आलमी दिन पर वजारत सेहत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खून अतिया करने की अहमियत उजागर करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तकरीबन 150 रजाकारों ने खून अतिया करने की मुहिम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर डेपेंग लियू मुहिम के दौरान खून का अतिया देने वाले पहले रजाकारों में शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर लियू का कहना था कि रजाकाराना खून का अतिया जिंदगियां बचा सकता है। WHO पाकिस्तान के साथ खून की सर्विस को मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखेगा। रजाकाराना खून का अतिया खून का सबसे महफूज और पायदार जरिया है, क्योंकि रजाकाराना अतिया दहिंदगान से मुतादी बीमारियों की मुंतकली का इम्कान कम होता है और वो ऐसे निज़ाम की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं जिसमें हर मरीज को महफूज खून तक रसाई हासिल हो। पाकिस्तान में 2.3 मिलियन सालाना खून के एहतियात में से तकरीबन 82% खानदान या मुतबादिल अतिया दहिंदगान से आते हैं, जबकि रजाकाराना बगैर मुआवजे खून के एहतियात कुल का सिर्फ 18% हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत के साथ तनाज़े से पहले खित्ते और आलमी बरादरी जितने महफूज थे अब नहीं हैं। मारूफ अखबार द यूरो ऑब्जर्वर को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जंग बंदी हुई है लेकिन अमन अभी तक हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े में भारतीय जंगी जुनून तेज़ी से बढ़ा। ये भारत ही था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जौहरी सलाहियत का मिसाइल नस्ब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत का रवैया इंतहाई ख़तरनाक था। उन्होंने कहा कि अमेरिका तस्फिया कराने में बराह रास्त शामिल रहा और तमाम आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए इंतहाई मददगार रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन हमेशा आलमी क़वानीन की बात करती रही है। इस सूरत हाल में भी यूरोपीय यूनियन का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना और 240 मिलियन अफराद का पानी रोकना अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने का भारतीय फैसला जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इसराइल ने कोरोना वबा के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसके बायस वहाँ नमाज जुमा भी ना हो सकी। फ़लस्तीनी खबररसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फजर की नमाज के बाद मस्जिद पर धावा बोला और वहां मौजूद नमाजियों को ज़बरदस्ती निकाल दिया। नमाजियों को बेदखल करने के बाद इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा की बंदिश ईरान पर हमले के चंद घंटों बाद की गई, जबकि मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मस्जिद अक्सा की बंदिश और नमाजियों पर पाबंदी मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी है। और अभी आपको बताएं कि ओकाड़ा में मसीही बरादरी में ईस्टर ग्रांट के चेक्स की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बरादरी के 200 अफराद में 15,000 फीकस के हिसाब से 30 लाख रुपए दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली एजाज आलम ऑगस्टन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अक़लियतों की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही हैं। मसीही बरादरी में ईस्टर ग्रांट की तकसीम इस सिलसिले की अहम कड़ी है। मसीही बरादरी के हर फर्द को चाहिए कि पाकिस्तान की खातिर ज़िंदगी के हर शोबे में मेहनत और दयानतदारी से काम करे और वतन अज़ीज़ की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज ना करे। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा प्रोग्राम ने धूम मचा दी। पाकपतन के नवाही इलाके मलकाहांस में बरसों से पड़े कूड़े क्रिकेट के ढेर हटा दिए गए। तफसील जानते हैं अब्बास अली आरफी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का दायरा कार शहरों से दूर वाक़े देहातों और कस्बों तक वसी कर दिया गया है। सुथरा पंजाब की टीमों ने पाकपतन के नवाही और तारीखी कस्बा मलकाहांस के गली कूचों, मोहल्लों और सड़कों में बरसों से पड़ा कूड़ा करकट उठाकर माहौल को साफ सुथरा और खूबसूरत बना दिया है। शहरियों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा। तकरीबन मेरा ख्याल है 50-60 साल जो रूढ़ियां सन जड़ियां आज चौं से फर्क आते साफ सुथरा माहौल है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सुथरा पंजाब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रोड से एडे एडे वड्डे ढेर लगे सन जेडे उन्होंने सारे चुकवा देते हैं। रोड ऐसा काम किया है जिस जगह पे गंदगी ढेर लगे हुए थे आज वहाँ इंशाल्लाह गलीचे और फूल खिलने की कोशिश की जा रही है। ईद उल अजहा के मौके पर बेहतरीन सफाई करने पर सुथरा पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स की खिदमात को सराहते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनको मिठाई और कैश इनामात भी दिए। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने साफ सुथरा माहौल फराहम करके अवामुन नास के दिल जीत लिए हैं। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।
महकमे ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए आगाही सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिले भर में इस साल 1,45,000 एकड़ रकबे पर अगेती कपास की गई है। तफसील बता रहे हैं बहादुर हुसैन। अगेती कपास की फसल को शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत से महफूज रखने के लिए महकमा ज़राअत तहसील विहाड़ी की जानिब से किसानों की रहनुमाई के लिए ज़िला भर में आगाही सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस साल ज़िला विहाड़ी में 1,45,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। तहसील विहाड़ी में 55,000, तहसील मैलसी में 75,000 और तहसील बोरेवाला में 15,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। मक्खी के कंट्रोल के लिए कीले चिपकने वाले काट और लगाएं और इसके साथ साथ पानी को भी बेहतर करें। कपास के काश्तकार मौजूदा गर्मी की शिद्दत को देखते हुए 3 से 5 दिन के वक्फे से दरमियानी सतह का पानी शाम के वक्त लगाएं और साथ में नाइट्रोजन, कैन गवारा, सल्फर, जिंक, पोटाशियम का इस्तेमाल करें। सफ़ेद मक्खी और चुस्त तेले के हमले की सूरत में स्प्रे भी शाम के वक्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रॉप भी बहुत अच्छी है, कॉटन जी है तो मैं बड़ा मुतमिन हाँ महकमा ज़राअत तहसील तो इस टाइम। किसी भी मसले की सूरत में फौरी तौर पर महकमा ज़राअत से रब्ता करें। महकमा ज़राअत तहसील विहाड़ी का अमला हर वक्त फील्ड में मौजूद है। इस दफ़ा कपास की फसल बेहतर है और इसकी बेहतर पैदावार तवक्को की जा रही है। ताहम मौसमी तब्दीलियों से न सिर्फ इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं बल्कि जानवर और फसलें भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। ननकाना साहब में अदबी तंजीम वजदान के ज़ेर एहतमाम पंजाबी ज़ुबान के मारूफ शायर तजम्मुल कलीम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ शोरा और मुसन्निफ़ीन ने शिरकत की और तजम्मुल कलीम की अदबी और समाजी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माविया। तकरीब की सदारत पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर मोहम्मद अनवर जाहिद ने की, जबकि तकरीब में मुमताज़ शोरा, मुसन्निफ़ीन, समाजी शख्सियात, तजम्मुल कलीम के अजीज़ व अकारब और अहले अदब की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तजम्मुल कलीम की अदबी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तजम्मुल कलीम इस मुआशरे की ज़ुबान था, इस मुआशरे की सोच था, इस मुआशरे की आंखें था। उन्होंने पंजाबी गज़ल लिख के दिखाई है कि पंजाबी में गज़ल लिखी जा सकती है। उन्होंने शायरी दी एक्सेप्टेंस और जो सारा जोर हैगा वो पंजाबी रोज़मर्रा विच हैगा। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि तजम्मुल कलीम एक अजीम इंसान और बेहतरीन शायर थे, जिन्होंने पंजाबी गजल को न सिर्फ जिंदा किया बल्कि इसे अरूज तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तजम्मुल कलीम ने अपनी शायरी में आम आदमी के दुखों और मसाइल की बात की। पंजाबी ज़बान और अदब के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तजम्मुल होर नहीं आना कदे भी, बसे हो वारसी एक बार इको। उसके शेरों में बखूबी देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो अपने लिए कम दुखी था और लोगों के लिए ज़्यादा दुखी था। जिड्डे वड्डे शायर सन उस तो ज़्यादा वड्डे इंसान सन। 5 किताबां उन्हां दियां नंदरेआम ते आईयां ने, 6वीं किताब उन्हां दी जिहड़ी सी वो बिल्कुल तैयार है। कामी गुलकारा मुबीना अकबर ने तजम्मुल कलीम का कलाम अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाकर हाज़िन से खूब दाद हासिल की। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। तजम्मुल कलीम पंजाबी जुबान का एक कीमती असासा थे, जिनकी वफात से पैदा होने वाला खला मुत्तपुर नहीं हो सकेगा। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती से डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली खजाला कोला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा और अरकान ने बलूचिस्तान असेंबली ने मुलाकात की। मुलाकात में बजट साजी, अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और अरकान असम्बली का पीपल्स ट्रेन सर्विस के आगाज़ पर इजहार मुसरत के अलावा गुड गवर्नेंस, सेहत, अमन व अमान और तरक्याती अहदाफ पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा गया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि तारीख में पहली बार PSDP फंड्स का 90% से ज़ायद इस्तेमाल मुमकिन हुआ और हम बलूचिस्तान में बैनुल जमाती हम आहंगी और सियासी इत्तेफाक राय का माहौल पैदा कर रहे हैं और हमारी हुकूमत का मकसद सिर्फ बजट बनाना नहीं बल्कि अवाम की अमली खिदमत है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा,
کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان، وسطی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند ایک مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد 51، بھاول نگر، تربت، لسپیلا، سبی، مہنجو دڑو 49، دادو، روہڑی، نورپور تھل، بکھر، سرگودا، ساہیوال، بھاول نگر اور سکھر میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور عظیم صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے اکثر اضلاع خصوصاً جنوبی پنجاب کے میدانی علاقے شدید گرمی کی زد میں ہیں۔ صوبے میں جاری ہیٹ ویو کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز ازکا مقصود سے۔ جی ازکا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر جاری ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے شہری نڈھال ہیں۔ تاہم محکمہ موسمیات نے 13 سے 16 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں کے سلسلے سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ شہر کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 اور کم سے کم 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 41% ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آندھی اور بارش کی صورتحال میں محفوظ مقامات پہ رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، اسلام آباد اور گردنواہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ تفصیل کے لیے حسن ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز اسلام آباد اور گردنواہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اور خبرنامے میں اب آپ جان سکیں گے کھیل کی دنیا کا حوال۔